If I look back, it all started from a small village in Bihar. So now, since you have won this award, do you think you have some responsibility also? Earlier, it was, my goal. Earlier, it was the people who had supported. Now it's world's goal that, the world had chosen me to, become the first Indian to win this prize. That academics is one part, but as you mentioned, where lies your heart? Hi, I'm Dr. Gurminder Raval. I am a generational bridge coach. ऐसे तो मैं सारा दिन पेरेंट्स से मिलती हूँ, बच्चों से मिलती हूँ, और मुझे लगता है कि ऑल द पेरेंट्स आर वरीड अबाउट द एकेडमिक एक्सीलेंस ऑफ देयर चिल्ड्रन, एंड दे लाइक एवरी पेरेंट वांट्स देयर चाइल्ड टू सक्सीड, बट द मेजर यार्ड स्टिक अभी तक जो मुझे लगता है इज़ एकेडमिक्स. बट आज मेरे पास एक ऐसे गेस्ट हैं, एक ऐसा युवा बच्चा, a boy we all should be proud of, Adarsh, and today he is with us. I am going to introduce him to you. He is the winner of a Global Student Award, which is known as Nobel for Students. He is the first recipient from India of this award, and I am so glad to tell and share with all of you, coming from humble backgrounds from a small village of Champaran, passing through n number of challenges in life, Adarsh has now received a humongous award of 3.5 CR scholarship from Georgetown University, and next week he is going to join there. आज मैंने उन्हें हमारे साथ बुलाया है, हमारे सब छोटे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि लाइफ में, एंड स्पेशली पेरेंट्स को भी, मेरे लिए भी, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत कुछ होता है. दी ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज़ सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस. अब मैं आपको आदर्श से मिलवाती हूँ, एंड आदर्श से ही जानना चाहेंगे अबाउट हिज लाइफ. ही हैज़ कम अ लॉन्ग वे. लेट्स लिसन फ्रॉम हिम. Welcome to our show, Adarsh. Thank you so much. It's wonderful to be here. And I am feeling so glad that we are going to tell and share your journey with all the viewers, how it has been so far. So Adarsh, I would like to first listen from your mouth. मुझे तो मालूम है, मैंने बहुत पढ़ा है, about your journey and where you are and from where it started. So, if I look back, it all started from a small village in Bihar where I was born, in the Champaran East region of Bihar, particularly the East Champaran area. Initially, I went to a government school, like, any other kid there. Life was very typical, normal, जैसा बिहार में होता है. Then my mother, being very gritty and very, I would say, enterprising, she moved to the nearby town and she got me admitted into the local private school. Then I studied there. Then Geo came, free internet and all of those things. And internet came with a lot of opportunities for someone like me who was very curious and very driven. Even because there were a lot of problems in the family situation was not really all right. My mother used her sort of life saving, everything that she had to buy me a laptop. And that laptop became a gateway to a different world for me. That's how I explored different things, entrepreneurship, technology, coding, etc. And all of the things. And this is I'm thinking I'm in 5th or 6th grade that time. Yeah. So, and it was for me, when I used to go and like, try to take someone's help, they were like तो पागल है क्या, ये क्या पूछ रहा है, किताब मतलब साइंस में अच्छे नंबर ला ले, वही काफ़ी है. मेरे नंबर्स उतने अच्छे आते थे. So that's how things were. Then COVID came, things, schools got closed. Then I had my internet and I had my laptop and lots of time. So started learning things, started building things, built my first startup, failed it within 3 months, built, multiple things and, failed it. Then, I realized the limitation of my own geography. Then I moved to Kota to prepare for IIT JEE. But that also didn't work out. Then I again started, reaching out to people and asking for help. And somehow, somewhat happened. People were really kind to me. I was very lucky. A lot of opportunities came on the way. And I happened to found my fourth initiative or startup called Skillzo, which we run right now. And we have worked with almost 20,000 students across India. And I was very lucky to be awarded a full scholarship to study IBDP at Jayashree Periwal International School in Jaipur. It completely changed my life. And as you told, I also became the first Indian to win Global Student Prize by Waki Foundation in Czech. So life has been very wonderful, lots of ups and downs. But I think all of it has been taken towards a mission to sort of make this world a better place than it is.
So, if I ask you, who are the people responsible who have been instrumental in keeping you motivated throughout this so far journey of yours and where you have reached now? So, are there some people who you want to acknowledge? See, there's so many people, that I want to acknowledge. There are multiple people. There's not, one person that who has, changed everything for me. I just don't want to, like take one particular name. But of course, my mother, that's, where things really started. I think the trauma I had in my childhood still, sort of made me very ambitious and very driven towards things. So, of course, my mother, she's been, very hardworking. Though we don't agree on many things, we really disagree. And I think that's part of life. But a lot of my mentors, the one who initially invested in Skillzo, the way I got scholarship at JPIS. So there's so many people. But what I would say, that I've been very lucky to be supported by so many people. Even you have been helping me so much with so many things. Thank you for that. Similarly, there are, many people who are helping me or help me. But what I would say, the people who I see, the younger others, family like Adarshas, they inspire me the most. Because I know that how much hard work my mother did, or how much hard work the people in my community do. So I understand that pain. So it's now I have solved it for my mother, but I want to create more Adarshas, or more people who can solve the problem for their family and their community, etc., etc. So now I think it is way more than a personal goal in life. I think that has been fulfilled, fortunately, all thanks to God, and the people. But now it's those people who I want to work with and work for, that they inspire me. Now like thankfully my mother is happy, my family is happy with whatever I'm doing. Even my mentors are very happy, the way things have really worked around. So it's the people now that are my motivators, nothing else, honestly. Okay, so if I say, because as I told, मैं बच्चों से रोज़ मिलती हूँ, being a Gen Z coach, पेरेंट्स आएंगे, बच्चे काम नहीं करना चाहते. So from your discussion, what I could see is hard work is very important. You mentioned it twice, that hard work, your parents' hard work, your mother's especially hard work inspired you, and you also put in your best. Yeah. Be it Skillzo, and you have Badlao also, where you are working with. You are going to help rural people in whatever is your aim in that, right? So hard work, I picked one thing from here, that hard work is and focused attention. Yeah. Right. So now since you have won this award, do you think you have some responsibility also? How has life changed? पहले तो ये बता. I think people think life has completely changed, and not. It has changed very drastically. But more than anything, the shoulders are very heavy now. There's a very big responsibility. Earlier it was my goal. Earlier it was the people who had supported. Now it's world's goal. That the world had chosen me to become the first Indian to win this prize. It's not people from Bihar, or my school, or my mentors. It's the people who I had even never met, never knew. Still I don't know many people who have sort of chosen me to be here. But I'm really grateful for to the foundation, Varkey Foundation and Czech, for this award. So now it's a responsibility that has come from so many people from across the world to be chosen among 11,000 students from 148 countries. The shoulders are really heavy now. Things have really changed in very good ways. As people have said, I don't have any great power as of now, but great power comes with great responsibility. So that thing and that feeling is there. And it is a very good credibility, and at the same time it gives you a lot of confidence in the work you're doing. And I also think I personally feel, I don't know why exactly the judges chose me, but of course they choose you on the basis of what you have done previously, but also I think they notice your potential, that what you want to do. Yeah. Right. So how I'm able to utilize this opportunity to make the world a better place than it is. So I think that factor is what I consider this is the reason I have been chosen, and I should use all the resources, all the things, and every opportunity that is coming in the direction of making this world a better place. So yeah, it's a lot of big responsibility, I would say. Big responsibility on comparatively younger shoulders. Yes. Huh? Yes. Okay. So you mentioned that probably you were chosen because of the work they noticed. And are you referring here to Skillzo?
Yes, Skillzo has been, I think, probably the most important work that we have done so far. There will be multiple factors. I think they have 6 parameters, starting from academics, the impact you have on your school community, etc., on the world, and your vision, your own life, and the challenges that you face. So yeah, a couple of things. But in terms of the initiatives that I had, I think Skillzo was, I think the most important and impactful one. Is the most impactful, not was, yeah. Okay. So, from your perspective, since you have been recognized for something which is apart from academics, I would like to know from you, do you think to succeed in life, you don't have to be academically very good and very strong? Are there something or some things else also which one needs to focus on while being a student or in their lives as a whole? I think a lot of things really depend on your context. But from what I've learned from my life, I was, until grade 8th or 7th, I was a very good student, always, and scoring 90% and above. But if I realize today, if I would have just become a good student, मैं सिर्फ पढ़ाई करता, सिर्फ मैं मैथ से क्वेश्चन कर रहा होता, या कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा था, तो मैं वहाँ नहीं होता जहाँ मैं आज हूँ. तो अगर मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट एकेडमिक्स किताबों के हिसाब से होता, तो शायद मैं वो सब अचीव नहीं कर पाता, जो आज भगवान की कृपा से और लोग की कृपा से मेरे पास है. तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पढ़ाई, एकेडमिक्स अलोन मेक्स अ पर्सन. बट अगेन सब बहुतों के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है. आई नो पीपल हु आर रियली गुड विद इन मैथमेटिक्स, but they are pursuing it because they love doing it. Yeah. They're not doing it because they think that the world will appreciate it, or they're not doing it just because they think it will give them XYZ thing. They deeply feel about it, or they have multiple factors contributing to it. So for few people, maybe academics could be the their calling. But from what I've realized working with 1,000 students, academics is not really most people's calling. And I think we should definitely look life through an angle not only from academic, personality development, communication, how to fail, learning how to fail. Because as a topper, you're like you're just topping, and in real life you just fail one time and you can't face that, right? But for someone who has always failed in life, they're not afraid of it. They're like, अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है. So they are always trying to take some sort of risk and etc. And I think in life you are awarded for your hard work, but at the same time you're also rewarded for your risk taking ability. Who's the first one to do this, who took the risk, who took the initiative. They might not be the most hardworking after taking the initiative, but if they took the risk, they will be rewarded for it in life. So there are so many skills, I think, apart from किताबी ज्ञान, that are really important. And personally, अगर मैं सिर्फ पढ़ाई करता तो मैं शायद लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर पाता जितना नहीं करके मैं कर पाया हूँ. तो तुमको लगता है कि बाकी जो बच्चे होते हैं उनमें भी बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे उनमें भी हो सकता है हिडन स्किल्स हो, हिडन टैलेंट्स हो, जो समहाउ दे रिमेन हिडन ओनली बिकॉज ऑफ प्रेशर्स फ्रॉम द सोसाइटी. एज यू मेंशन के लोग बोलते हैं कि दे हैव टू स्टडी एंड अचीव मार्क्स बिकॉज पीपल विल से समथिंग. और पेरेंट्स का प्रेशर अगर डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्टली पेरेंट्स आर ऑल्सो वरीड फॉर देयर चिल्ड्रन. दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी देम successful, happy in life, and yardstick remains, the major remains कि academics कैसा. But हमारी discussion से what I realize is that academics is one part, but as you mentioned, where lies your heart? Yeah. Somebody if as you mentioned is good in maths, तो वो maths करेगा तो उसका मन कर रहा है करने को, and फिर कर रहा है तो वो करता चला जाएगा. One is your inner calling. What do you want to do? Yeah. Second, I understood from here is don't be afraid of falling. Yeah. Falling and failing, which is I think if you are a regular with the news, you must be. आजकल कितने तुम्हारी एज के बच्चे जो हैं वो जल्दी से गिव अप कर देते हैं. Young student losing life at the age of 17, 18. Sometimes reached IIT, reached नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, एम्स में हो गया और द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, स्टिल दे आर लूजिंग लाइफ बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ फेलिंग. वहाँ जाने पे पहले ही सेमेस्टर में अगर मार्क्स नहीं आए, दे आर गिविंग अप. व्हाट वुड यू लाइक टू से, बिकॉज यू मेंशन्ड दैट फेलियर्स आर जस्ट पॉलिशिंग ग्राउंड्स, isn't it?
True. So what would you like to say to them? I think, as I mentioned, it's very important to embrace failure and understanding that where, heart truly lies. As, told, that people go to IITs, and even if, they happen to choose a different life decision, which we don't expect, really that, so अगर हमें लगता है कि IIT जाने से सब कुछ सॉल्व हो ही जाता है, तो शायद हमें ये केसेस कभी सुनने को मिलते ही नहीं. Exactly. So probably, they really worked hard, but still they couldn't find, the success they really wanted. And it's not their fault, right? They have done their job. They have, done the work. But I think it's somehow the uncontrollable factors, probably that have led them, to choose that one particular path that they really didn't want to pursue. Or maybe they wanted to pursue, but they didn't know, how to navigate it, how to navigate that failure, how to, navigate that imposter syndrome, that when it hits everyone. I keep meeting so many people, on a daily basis. And no one's life is perfect, despite, in media, in social media, even my life seems so, so perfect, when I go back to, places and when I meet people, like, you have figured out everything. I've not figured out everything. I only know, that on a daily basis how much, I have to think about things, how much failure, that I have to go through. But unfortunately, the way the social media world works is that, we really celebrate the sort of success. We always see the, chapter 10. We don't see the chapter 1 where we have failed, chapter 2 where we have failed, and multiple chapters. So I think it's really important to somehow learn to embrace failures and being okay with not being okay, right? That being comfortable with being uncomfortable, right? That's very important. I can't be, expecting कि हर बार मैं टॉप ही करूँ. ठीक है, अगर आपकी वो एम्बिशन है कि आपको लाइफ में हमेशा अच्छा ही करना है, अच्छी बात है. मेरी भी है कि मैं हमेशा करूँ. मैं जानबूझ के कहीं फेल होने नहीं जाता हूँ. आई डोंट स्टार्ट विद रीज़न दैट आई वांट टू फेल. आई स्टार्ट विद द रीज़न दैट आई वांट टू सक्सीड. But I also have this thing in my mind that in case if things don't work out, it's okay. It's all Yeah. right. I wanted to go to Harvard, but things didn't work out. It's okay. Now I'm going to Georgetown University in Qatar. I'm happy with it, right? It's not that if I'm not going to XYG get XYG thing, life is over. We feel like that. It's okay to feel like that. We are humans. We are bounded with emotions. Yeah. But we need to understand that whenever life sort of throws you in a situation which you really didn't expect it. Yeah. In my case, and so many people I know, things have really turned out very, very well. We have really sort of enjoyed the outcome. Taking one example, when I moved to Kota from my home, after completing grade 9, I thought I'll go to IIT, and IIT में मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी. मैं तो क्रेडिबिलिटी हो जाएगी, पैसे कमाएंगे, 1 करोड़ का पैकेज लगेगा, फिर स्टार्टअप करेंगे, दुनिया बदल देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट जब मैं वहाँ गया तो चीज़ें मेरे लिए काम नहीं करी. मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं एडमिशन ले पाऊँ. जो लोगों ने प्रॉमिस किया था वो पीछे हट गए. बहुत सारी चीज़ें हुई. तो फिर तो मुझे लगा ख़त्म, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ सोचा था, है ना. बट somehow I give myself time, and things really worked out for the better, for the good. I'm really not today, happy not going to an IIT, right? I'm happy with whatever I'm doing. So I think sometimes when you're in a situation that you really didn't want to and you call it failure, just give it time, give it a thought, and I think things will really work out if you're if you have some drive in yourself. So this reminds me of one thing. Whenever some young people they come to me or मेरे trainings या workshop होते हैं, I always tell them to have plan A, plan B and plan C. My aim always is to make them realize A doesn't work, B is your dream, you have chosen again plan B. If B eventually doesn't work, ऐसा भी हो सकता है. Yeah. As you mentioned, Harvard जाना था या IIT जाना था, but things turned out to be best for you Yeah. if it is plan C even. Right? True. So plan A, B, C should be a way of life for every student while you are studying. See, I think in my case, I had that I want to achieve this particular thing, or somehow I had a broad or a specific idea somewhere between that. I thought there's only one way to achieve it, but when I failed, I also saw the 100 other ways, right? And maybe the second or third way was a better fit for me and my personality and my life context rather than the first way. So I think having multiple plans, I think would again depend on context. For now I can't be like कि मतलब मुझे कुछ एक स्पेशल स्किल सीखनी है, ठीक है, तो मैं उसके लिए बुक लेता हूँ या कोर्स लेता हूँ. तो अब I can't be like कि मैं एक पेज पढ़ूँ और छोड़ दूँ उसको.
I need to give it some time, I need to put my efforts. See, choosing failing and not putting efforts are two different things. Sometimes we also confuse that हम हमेशा लगता है ठीक है ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, बट हम वो तब भी प्लान ए को तब छोड़ेंगे जब हम प्लान ए में सब कुछ हम अपना झोंक चुके हैं, हम अपनी पूरी मेहनत कर चुके हैं और चीज़ें हमारे कंट्रोल में ना हो तब. बट जब तक हमारे कंट्रोल में है तब तक मैं प्लान ए ही रखूँगा, राइट. बट आई थिंक 100% थिंक कि एक चीज़ को अचीव करने के मल्टीपल तरीके हैं. एक लाइफ में अगर आपका गोल है, किसी के लिए पैसे कमाने हैं, किसी के लिए अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, किसी के लिए दुनिया को बदलना है, किसी के लिए मिक्स ऑफ थिंग्स है, तो उसको करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है. आप डॉक्टर बन के भी कर सकते हो, इंजीनियर बन के भी कर सकते हो, एक पॉलिटिशियन बन के भी कर सकते हो, लॉयर बन के भी कर सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बन के कर सकते हो. आप जो कर रहे हो एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज समवन हु इज कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी व्हेन दिस इशू is very critical. And fortunately now that we have started speaking about it, few years back we were not even speaking about it, and we were not Exactly. even ready to accept that this is a problem. But the that stigma has been sort of gone, or is going, I would say. I think it depends what kind of place you're coming from. So I think to achieve one thing there are always multiple ways rather than one fixed way. And आजकल तो दुनिया बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही अलग है. आप किसी तरीके से भी कुछ भी पा सकते हो, कोई रोड का अंत नहीं है अब. So, from all what we have discussed right now, since I mentioned plan A, B, C, you mentioned if you have focused attention about something, there are several ways to achieve that goal of yours. Yeah. इसके IIT में एडमिशन नहीं हुआ, it's not end of the road. So since you have passed through the same process, if I say कि अगर बच्चों को तुमको कोई मैसेज देना हो, तुम क्या कहोगे उनको, और पेरेंट्स को भी. सी व्हाट हैपन्स समटाइम्स, बीइंग अ जेन ज़ी कोच, बच्चे जब मेरे पास आते हैं, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ फेलिंग फॉर देमसेल्व्स. 2 days बैक आई वॉज इन अ वर्कशॉप, तो बच्चे मुझे बोल रहे हैं हमारा कंसर्न ये नहीं है कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, मम्मी पापा को बहुत बुरा लगेगा. तो मैंने उनसे बोला कि मम्मी पापा तो आप ही के हैं, वो समझेंगे. सो देन केम द नेक्स्ट पॉइंट, द अदर्स विल नॉट अंडरस्टैंड, द सोसाइटी विल स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ अस, और along with it our parents, and that is something which we are not able to bear. How do you feel this is true, and how to navigate through this kind of feeling? What is your message to the youth? अगर ऐसी सिचुएशन किसी को आ जाए तो फिर उसको क्या करना चाहिए कि वो मम्मी पापा का पेन समझ रहा है, अंडरस्टैंड. मुझे आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला है जो अपने पेरेंट्स की केयर ना करता और उनसे प्यार ना करता हो. एंड सेम इज़ द केस ऑफ पेरेंट्स. पेरेंट्स कोई रेडी नहीं है कि हमारा बच्चा गिव अप कर दे. बट उससे पहले, एज यू मैंशन दैट वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग, डू यू थिंक हैविंग अ डायलॉग एंड ओपन डिस्कशन with either your peers or somebody is going to help these kids? How will you guide them if you happen to meet such a child? Yeah. I think to guide them you are the best person, not me. But I would just share a bit of the things that I've been sort of learned or tried myself. First is communication, transparency are the most important thing, non-negotiable. You need to communicate. If you don't like something, you need to communicate, maybe in a better way, or you can choose the way of communication as per your context. सोसाइटी का प्रेशर होता है, परिवार का प्रेशर होता है, और हम उस प्रेशर को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, बस उसको हम एक्नॉलेज करके इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे अंकल हैं या मेरा ये दोस्त है, ये नहीं मानने वाला, ये बोलेगा ही बोलेगा, इसके कमेंट्स आएंगे ही आएंगे. तो हमने उसको एक्नॉलेज कर लिया है ना कि ये तो होना ही है. बट क्या अब हम उस कमेंट्स को सुनते रहें या उसको छोड़ के अपने काम पे ध्यान दें, राइट. मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था, बहुत फिल्मी तरीके से बोल जाता है कि इस ज़िंदगी में किसी को कुछ नहीं आता है, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसको सब आता है, राइट. सो व्हेन थिंग्स starts working in your own favor, people start supporting you. And the good thing is कि लोग आज बोल देते हैं, कल भूल जाते हैं. भले ही आप बोल दो और किसी की ज़िंदगी में उसका क्या प्रभाव पड़े आप वो रियलाइज़ भी नहीं करते हो. कुछ तो मोटिवेट भी हो जाते हैं और कुछ तो बहुत डिमोटिवेट भी हो जाते हैं. और हमारे साथ ये है कि हमारे साथ कुछ खुशी वाली चीज़ हो तो हम 1-2 दिन तक सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद उसको भूल जाएंगे. बट कुछ बुरा हो जाए तो उसको लेके ही बैठ जाएंगे, नहीं ये तो मेरे साथ बुरा हो गया, कैसे हो गया, मतलब सबसे अनलकी मैं ही हूँ. फैमिली के जहाँ तक सपोर्ट का बात है, सबसे पहले बात हम ये समझना है कि कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा अच्छा ना करे. वो शायद बस डरे हुए हैं कि शायद ये करे तो ऐसे कुछ गलत ना हो जाए, मेरे बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए. और हमारे और उनके जनरेशन में इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा डिवाइड है कि वो प्रॉब्लम उनके लिए
हमारा जो लाइफ है उनके लिए समझना शायद थोड़ा मुश्किल है, और सेम हमारे साथ भी उनकी लाइफ थोड़ा समझना मुश्किल है। तो हमें छोटी छोटी चीज़ें करके उनका विश्वास जीतने की सबसे पहले ज़रूरत है। जब मैं घर से निकलना चाहता था 9th के बाद, तो मेरी मम्मी एकदम नाराज़ थी, मेरे से बहुत ही गुस्सा थी, वो बिल्कुल उस डिसीजन से खुश नहीं थी। बट मुझे पता था कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो फिर चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो बहुत नोक-झोंक हुआ, बहुत बातों पे कॉन्वर्सेशन, बहुत हीटेड कॉन्वर्सेशन होती थी। बट मैं यही कहूँगा कि अगर आप श्योर हो कि ये चीज़ आपके लिए है, ये चीज़ आपके लिए काम करेगी, तो आप क्लियर कर दो कि मैं तो ये करने वाला हूँ, राइट। अब आप उसमें आप यही आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज़ सपोर्ट मी एंड गाइड मी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट यू कांट बी डिसरिस्पेक्टफुल, you can't be you can be rebellious in a very respectful manner, but you can't be like तहस नहस मचा दिया ऐसी चीज़ें करना, क्योंकि मैंने एग्जांपल्स देखे हैं इसके ऐसे होते हुए। तो मुझे नहीं लगता वो तरीका है। आप अपने पॉइंट को रख सकते हो, आप उसमें एकदम स्ट्रांगली रख सकते हो, बट कम्युनिकेट करना आई थिंक उस पॉइंट को बहुत ज़रूरी है। और छोटी छोटी चीज़ों से विश्वास करना, आज मेरी मम्मी मुझे बिल्कुल डाउट नहीं करती है, है ना, क्योंकि मैंने उनको अब थोड़ा प्रूफ कर दिया कि चीज़ें थिंग्स रियली वर्क। बट शायद आपकी केस में आप जल्दी प्रूफ ना कर पाओ। ऐसा भी हो सकता है ना कि मैंने तो चलो मैं लकी था, मेरे साथ हो गई चीज़ें 1-2 साल में, बट सबके साथ वो नहीं हो सकता है। तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। तो आपको चीज़ों का बैलेंस थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि आप परिवार को कैसे समझाएं, कैसे विश्वास जीतें। अब आई कांट बी लाइक समवन कि मैं कल को बोलूँ कि मुझे घर से मुझे बाहर जाना है, मुझे स्टार्टअप बनाना है, और ज़िंदगी भर जो मैंने अपने साइंस दिखाए हो, वो लेजीनेस का दिखाया हो, कुछ ना करने का दिखाया हो, तो पेरेंट्स के लिए मुश्किल है ट्रस्ट करना। तो पहले हमें वो ट्रस्ट जीतना। अब आप जैसे भी जीतो, आपका जो भी तरीका है उससे आप करो, है ना। या तो आप अपनी बातें करके आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो, तो वो करो, है ना। या तो कुछ काम करके दिखा सकते हो, तो वो करके दिखाओ। तो ऐसे करना ज़रूरी है। और मैं तो यही बोलूँगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनका तो आप थोड़ा सुनो बहुत, ठीक है, आप उनको थोड़ा एक्नॉलेज भी करो, बट जो बाकी दुनिया उनसे तो आपको मतलब ऐसे एकदम फोकस होना चाहिए। जो गाँव में कहते हैं ना कि बैल की वो जो होती है, एकदम फोकस रहो अपनी चीज़ पर। आप सुन ही नहीं सकते क्या दुनिया कह रही है। जब मैंने 21 कॉलेजेस में अप्लाई किया अमेरिका में, यूएस में, एंड थिंग्स डिडंट रियली गो एज पर प्लान। एवरीवन अराउंड मी थॉट ही इज अ फेलियर नाउ, ठीक है। तो आई यूज्ड टू हियर ऑल द कमेंट्स एक्सेट्रा, थिंग्स वर रियली सैड, थिंग्स रियली टर्न्ड अराउंड, कि लोग वैसे बदल गए, मतलब आपको रियलाइज भी नहीं हुआ। in that case I knew that I just need one more win to just shut them all off. Right, of course that was not my goal or anything like that. Intention has been the goal has been always far different, and distance from those kind of things. But I knew if there's one thing good happens, everyone will change, everyone will come back, and things will people will start again saying good things about me. So one thing I've realized कि लाइफ में कोई बहुत तारीफ़ कर दे तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और कोई ज़्यादा बुराई कर दे तब भी ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा न्यूट्रलिटी एंड थोड़ा काम पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, until someone is really close to you and they care for you. And हम किसकी बातें सुनते हैं उस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किसी रैंडम इंसान का एडवाइस लूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि हमें उसकी एडवाइस लेनी चाहिए। पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि वो इंसान उस फील्ड में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो, कुछ उसने कर रखा हो। और दूसरी चीज़ वो है, क्या इंसान वो मुझे अच्छे से जानता है, क्योंकि जब तक आप मुझे अच्छे से नहीं जानते हो, आप कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, है ना। एंड थर्ड थिंग इज़ कि क्या इंसान वो मेरे लिए अच्छा चाहता भी या नहीं चाहता है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे हो फील्ड में, है ना, बट आप शायद मुझे अच्छे से जानते भी हो, बट शायद आप मेरे लिए अच्छा चाहते नहीं हो, है ना। सो आई थिंक ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। और ये सब सोच के लोगों की बातें सुननी चाहिए। कोई भी रैंडम इंसान कुछ भी बोल दे तो उसका अगर हम सुनना शुरू कर दें तो फिर तो हो गया, फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। आज इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े कंपनी चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स आते हैं। अब सबको रिस्पॉन्ड करना अगर शुरू कर दे तो फिर तो उनका कभी काम ही नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है फोकस इस मामले में बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट आई अंडरस्टूड इज़, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को, चाहे वो किसी भी एज के हो, आई ऑलवेज टेल देम कुछ तो लोग कहेंगे। इट्स एन ओल्ड सॉन्ग, मुझे समहाउ बहुत अच्छा लगता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो एज यू सेड, जो पब्लिक मेमोरी होती है ना, बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। इवन इफ़ यू सक्सीड, एंड ऑल्सो यू मैंशन कि हम जब खुश होते हैं तो थोड़े दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो फिर जब हम परेशान हैं उसको भी छोटे में ही निपटा देना चाहिए। बिल्कुल। The aim is that you have to keep going on in life, stay put where you are. एक कोई सक्सेस आपका यार्ड स्टिक नहीं है, मेजर नहीं है कि आप बहुत ही अच्छे हो इस फील्ड में। जैसे यू मैंशन व्हेन यू डिडंट गेट एडमिशन इन हार्वर्ड, दैट वाज नॉट द अल्टीमेट थिंग टू जज योर एबिलिटीज़। सिमिलरली
तुमने ये भी मेंशन किया कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो एंड डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल. दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड आई हैव पर्सनली रियलाइज, मुझे बहुत क्लाइंट्स मिलते हैं जहाँ पे पेरेंट्स का पेन ये है कि बच्चे जो है ना लैंग्वेज का हर बैरियर क्रॉस कर देते हैं. दे गिव सो मच ऑफ वर्बल पेन टू द पेरेंट्स. जब पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम उसको झेलना मुश्किल है. सो हेयर आई वुड लाइक, बिकॉज यू रिप्रेजेंट दैट एज. मैं 2 जनरेशन्स को ब्रिज करती हूँ. मैं वो रिप्रेजेंट करती हूँ जिनकी मैं बात आपको बता रही हूँ. आप वो रिप्रेजेंट करते हो जिनसे वो पेन उनको आता है. लाइक मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा साइलेंट रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए. ऑल सेड एंड डन, इट्स योर चाइल्ड. रिस्पॉन्ड करिए, रिएक्ट नहीं करिए. सो व्हेन इट इज़ अ हाइपर सिचुएशन, पेरेंट भी समटाइम्स दे लूज देयर टेम्पर, है ना, रिएक्टिव होके दे माइट ऑल्सो से समथिंग विच इज़ अ बिग बिग हिट एंड ब्लो फॉर देयर चाइल्ड. मुझे ऐसा बोल दिया. लाइक देयर वॉज अ केस, फादर ने बोला कि ठीक है मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना. नाउ द चाइल्ड इज़ टेकिंग टू हार्ट कि आज के बाद शक्ल ही नहीं दिखाऊंगा, घर छोड़ दूंगा. ही माइट नॉट हैव मेंट दैट, है ना. सो हेयर आई वुड लाइक टू आस्क, तुम बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे? ऑलरेडी यू हैव सजेस्टेड, बट इन 2 लाइन्स कुछ ऐसी 2 लाइनर उनको दो कि उन्हें मतलब दिमाग में याद रह जाए. जैसे मुझे याद रहा, कुछ तो लोग कहेंगे दैट वे. पेरेंट्स को गलत समझना, इज़ दैट राइट? एंड ऑल्सो फॉर पेरेंट्स, सिर्फ लोगों की सुन सुन के अपने बच्चे को, पेरेंट्स भी बहुत कुछ बोलते हैं, उसका बेटा ये कर गया, उसकी बेटी ये कर गई, ये सब. सो हाउ डू यू सी इट, और तुम क्या सजेशन दोगे टू योर एज ग्रुप पीपल, एंड व्हाट विल यू काइंड ऑफ रिक्वेस्ट टू द एल्डर्स लाइक मी? I think, the way I have seen my family, I think the way for us, to get things done is, डांट के करा दो, पीट के करा दो. बट आज के ज़माने में आज के बच्चे उसके लिए रेडी नहीं हैं, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, है ना. और कभी कभी होता है कि बच्चे भी बहुत आउट ऑफ द वे बोल जाते हैं, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. कभी कभी मेरे से भी ये गलतियाँ हुई हैं, एंड आई रियलाइज दैट इज़ अ बिग मिस्टेक. सो आई थिंक यहाँ पे यही है कि जैसे आपने आई थिंक जो बोला, इस फील्ड में तो आपसे बड़ा कोई एक्सपर्ट मैं अभी जानता नहीं 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 मतलब बट मैं ये बोलूँगा कि वी नीड टू रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट. आई थिंक हम दोनों साइड से रिएक्ट कर जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है शायद, स्पेशली इन दिस फास्ट पेस वर्ल्ड रिएक्ट करना एक नॉर्मल वो लगता है. बट आई थिंक द ओनली थिंग आई वुड से इज दैट टेक टाइम, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट. Yeah, because I think bottom line remains, for parents their child is the ultimate concern of theirs, and they love their child to the core. And similarly I can say with conviction, parents की तरह बच्चों के लिए भी they love their parents, but the way of expression is I think somewhere it has gone muffled. Do you think स्कूल में कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जानी चाहिए? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है. बिल्कुल सिखाई जानी चाहिए. इनफैक्ट बहुत सारे स्कूल्स में सिखाई भी जाती हैं. अब वही डिपेंड करता है, हमारा कंट्री इतना डाइवर्स है, कि आप किस तरीके के स्कूल में जाते हो, कैसे जाते हो. बट विद ऑल डेटा, विद ऑल कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, आई कैन से दैट मोस्ट स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती हैं. और सिखाना तो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है. Communication is I think the most important and integral part of whatever we are doing. Whether I'm an employee or employer, whether I'm at home with my friends, whatever I'm doing, I need to communicate. I need to work in a group. I need to communicate. So I think yes, definitely communication skills should be one of the priorities of schools of today, and they should highly focus on it and invest on it. Also, do you think schools can also play some role बच्चों को इस तरफ गाइड करने का कि academic assessment is not the ultimate assessment of yours. If you are not able to excel in academics और तुमने कोई एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं अचीव किए, life is not over. Think about where lies your heart. You have already told that. Yeah. So अगर बच्चे को तुम कहो तो वन लाइनर, हाउ विल दैट लाइन लैंड इनटू देयर माइंड? बिकॉज फ्रॉम वेयर आई सी
वी एल्डर से तो 4-5 लाइन बोल देंगे, और हम जब बोलेंगे तो इट इज़ टेकन एज एन एडवाइस, और उनको उस स्टेट ऑफ माइंड में एडवाइस नहीं चाहिए होती. देन हाउ टू अप्रोच दैट काइंड ऑफ अ चाइल्ड? देखिए, आई थिंक सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, आई डेफिनेटली अग्री दैट academics are not everything. I am personally not been a very academic student since last few years, because I've realized, that in my life the importance of other things are way higher, and the context and the situation. बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो से दैट आप ऐसा भी नहीं कर सकती है, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, आप किसी और चीज़ में भी अच्छे नहीं हो, आप किसी और चीज़ में सीखने के लिए एफर्ट भी नहीं लगा रहे हो, और फिर आप कह रहे हो मुझे पढ़ना भी नहीं है, मुझे कुछ अलग करना है, और आप उसके लिए एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे हो, तो ये भी नहीं चलेगा. वी कांट टेक दिस एक्सक्यूज पढ़ाई इज़ नॉट एवरीथिंग, and try to take that excuse to be lazy, right? So we can't do that. We need to ensure that if we are not studying, if we think that physics is not for us, or maybe economics is for us, or maybe psychology is for us, or etc. XYZ subject, then we need to show our interest that we are doing the work, we are taking taking extra effort to do something in that. I can't be like नहीं मुझे ये भी पसंद नहीं है, ये भी पसंद नहीं है, और मैं कुछ नया सीखने के लिए एफर्ट भी नहीं डालना चाहता हूँ, तो वो भी हम नहीं कर सकते हैं. तो आपको जो भी पसंद है आप उसको दिखाइए, आप उसको प्रूफ तो करना ही पड़ेगा. आई जस्ट मेरे कहने से आजकल कोई भी कह सकता है कि मैं ये कर दूंगा या मैं ये करना चाहता हूँ, बट करके दिखाना और कर दूंगा, इसमें तो सबका फैसला है, इसमें तो सबका फ़र्क है. हमारे स्टार्टअप इसमें इकोसिस्टम बोलते हैं कि हम एक एक्शन शीट पे प्लान बनाते हैं, एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं. स्टार्टअप बनाना, एंटरप्रेन्योरशिप यही है कि आप उस प्लान को रियल लाइफ में कैसे एग्जीक्यूट कर देते हैं. प्लान तो कितना भी सुंदर कोई भी बना सकता है, बट जो रियल लाइफ में चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं, तो आप करके दिखाएं जो भी आप करना चाहते हैं. बहाने नहीं चलेंगे. बहाने नहीं चलेंगे. आई थिंक हिंदी में या कैसे भी बहाने नहीं चलेंगे. एंड आई हैव सीन मेनी किड्स बाइंग excuses. Yes. So if you are in the habit of having excuses to cover up, Yeah. then you have to reflect and think, am I doing this? If that is happening, then you need to sit back and Yeah. give it a serious thought. Yeah. You agree with me? Yeah. And also one thing is that सबकी लाइफ में टाइमलाइन सबका अलग होता है. कोई 6th ग्रेड में रियलाइज़ कर लेता है, कोई कॉलेज के लास्ट ईयर में रियलाइज़ करता है, कोई 2-3 जॉब करने के बाद रियलाइज़ करता है ना. तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको 9th ग्रेड तक ही सब कुछ फिगर आउट करके लाइफ एकदम सॉर्ट कर लेनी है, सब कुछ क्लैरिटी भी मिल जाएगी. कोशिश करें कि मिल जाए, बट जर्नी है कि मिल जाएगी, है ना. आज मुझे लगता है कि मेरे लिए ये सही है, कल को मुझे लगेगा कि वो सही है ना. तो चीज़ें बदल भी सकती हैं टाइम के अनुसार, और स्पेशली आज की दुनिया में जहाँ पे सब कुछ महीनों में, हफ्तों में बदल जा रहा है, तो वहाँ पे कुछ सर्टेन तो है ही नहीं, है ना. तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना कि सबकी अपनी अपनी टाइम लाइन है. हम किसी के चैप्टर 10 से अपना चैप्टर 4 कंपेयर ना करें तो ही अच्छा होगा हमारे लिए. और मुझे लगता है कि सबका अपना अपना एक एक्सप्लोर करने का, रियलाइज़ करने का एक अपना अपना टाइम होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में भी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में भी नहीं होती हैं. शायद किसी की ज़िंदगी में कोई आता है, उनको बता के चला जाता है. कुछ लोग के पास ऐसी समस्याएं होती हैं कि उन्हें खुद ही फिगर आउट करना होता है. कुछ लोग के साथ ये भी तक उनके माँ बाप उनको बता देते हैं. तो सबके लिए एक अलग अलग, सबका अपना 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 तरीका और अपना अपना अलग अलग मोटिवेशन है. So what I understood is खुद को किसी से कंपेयर नहीं करो. You are one of yourself. That is my favorite statement for everybody and for me especially, कि मैं अपने टाइप की एक ही हूँ, and there will be no lookalike. Lookalike हो सकता है, but exact copy of mine Not possible. you will not find. One, no comparison with anybody, and also you have to have a clarity in your mind कि आप करना क्या चाहते हो. And one more thing which I understood is, बहुत सारे बच्चे मुझे ये करना है, सपने देखने हैं, दूसरों की सक्सेस देख के भी सपने देखने हैं. दे आर planning and in that process they are not ready to focus what is going on right now in their lives. तो प्रेजेंट में भी रहना ज़रूरी है, तभी तो आप फोकस्ड रहोगे ना जो कर रहे हो उसको. अदरवाइज तो यू विल अगेन स्टार्ट बाइंग excuses because this time has passed, और टाइम किसी का फ्रेंड नहीं होता. आई थिंक डेफिनेटली मतलब आई कांट बी लाइक अगर मैंने कोई गलती कर दी पास्ट में, अगर मान लो मेरा जैसे फिर से हमने कोई एग्ज़ाम की तैयारी में कर रहा था, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं नहीं हुआ, तो मैं उसके बारे में बस रो नहीं सकता मैं कि नहीं हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गया, टाटा बाय बाय एक्सेट्रा. और मैं सिर्फ ये भी नहीं सोच सकता ना कि मैं सिर्फ फ्यूचर में ये करूँगा या ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा. मैं आज क्या करूँगा, ठीक है, मैं आज शाम को क्या करूँगा, मैं अभी क्या करूँगा, इस पर फोकस रखना. योर टुमारो will only become better if you work today, right? I can't just be visualizing and imagining and trying to think of doing something. We need to focus on doing things, maybe not the perfect,
मतलब इसीलिए लोग कहते हैं ना कि मतलब परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है ना, जो इम्परफेक्ट एफर्ट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, एफर्ट्स तो परफेक्ट होने चाहिए, बट जो इम्परफेक्शन है लाइफ का, शायद वही कहीं ना कहीं हमें ले जाता है ना। कोई इंसान है जो कभी कभी काम करता है, कभी कभी वो करता है, कोई इंसान है जो थोड़ा 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 रोज़ कर रहा है ना। कोई इंसान है जो वेट करता है कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तभी करेंगे। मैं ऐसे किसी को जानता नहीं जो सब कुछ परफेक्ट करके उन्होंने स्टार्ट किया हो, बट मुझे यही लगता है कि आपके पास जो भी है, जो भी रिसोर्सेज हैं, आप कुछ भी करना चाहते हो, आप मान लीजिए कि आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, तो मैं ये वेट नहीं कर सकता ना कि मेरे पास एक स्टूडियो हो, मेरे पास एक DSLR कैमरा हो, मेरे पास एक हाँ। परफेक्ट एडिट करने वाला टीम हो, एक स्क्रिप्ट लिखने वाला हो। आप खुद से स्टार्ट कीजिए, है ना। आपके पास जो भी एक छोटा सा कैमरा है, छोटा सा फ़ोन है, सेटअप बनाइए, उसका यूज़ कीजिए, उसका करिए। तो इससे आप प्रूफ भी कर पा रहे हैं खुद को भी, अपने आसपास में भी लोगों को, कि मैं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूँ, राइट। आजकल कहना अगेन बहुत ईजी है, और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इतना ईजी है कि कोई भी कुछ भी कह सकता है, बट अब वही है कि कहने और करने की फ़र्क है सब कुछ। हाँ, तो दैट मीन्स हेयर all the young people, they need to focus on the process. वो क्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं, कल क्या करने वाले, इंस्टेड ऑफ आज से 5 साल बाद ये करना है, मुझे ये चाहिए। तो यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। रिजल्ट को हर वक्त देखते रहोगे तो शायद प्रोसेस मिस हो जाएगा। दैट इज़ वॉट यू आर ट्राइंग टू से, है ना। सो इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है आजकल, बच्चे भी प्रेशर्ड हैं, इतने फील्ड्स हैं, इतना स्कोप है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट के इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, हर एक बच्चे को उतना अपने आप को इतने सारे प्लेटफॉर्म्स, इतना सारा एक्सप्लोर करना ज़रूरी है? वन, अगर है भी, आपने एक्सप्लोर भी किया है, दूसरों की सक्सेस से इतना प्रेशर लेना ज़रूरी है? नहीं, मुझे लगता है आप घर पे, वही बात है ना, आप घर पे बच्चे आजकल जाता है मेरा जनरेशन, तो घर पे अलग ही कहानियाँ सक्सेस की चल रही है ना। कोई फेलियर की बात ही नहीं कर रहा है, कोई फेल करके ये कर गया। वो इंस्टाग्राम खोल रहा है, सोशल मीडिया खोल रहा है, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। आप मेरी कहानी, किसी की कहानी, कहीं कहीं से कुछ ना कुछ आ रहा है ना। अब उसको लगता है मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, बट जैसे कि मैंने पहले बोला, वो उसका चैप्टर 10 है और आप अब शायद अपने चैप्टर 3 पे हो, है ना। और सबका अपना अपना स्पीड है, सबका अपना अपना तरीका है ना। कुछ लोग हो सकता है 5 साल तक स्ट्रगल करते रहते हैं, एक दिन उनके लिए सक्सेस आता है, और कुछ लोग धीरे 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 एक साल करके ना सक्सेस उनके लिए आता है रास्ते में। तो हम किसी से अगेन कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना। हमसे हमेशा कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ में बेहतर होगा ही होगा। मुझे कोई बता दे कोई एक एब्सोल्यूट आदमी जो सब कुछ में ही बेटर हो, सब कुछ में ही बेस्ट हो। तो बहुत लोग कहते हैं, और मैं भी यही कहता हूँ, कि हमें शायद खुद को बेहतर रोज़ बनाना चाहिए। ऑफकोर्स हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है चीज़ों का, कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा करना है, मेरा 5 साल का ये विज़न है, बट उस विज़न के लिए मुझे आज काम करना पड़ेगा। मैं ये हर बार ये नहीं सोच सकता 5 साल। बट येस, सक्सेस स्टोरीज़ हैं, आपकी भी होगी, सबकी होगी, अपना अपना वक्त लगेगा, और किसी का अभी हो गया तो जरूरी नहीं है कि आपका भी आज हो, है ना। जब मेरे दोस्त IIT के लिए अगर मान लो तैयारी कर रहे हैं, जब मैं वहाँ पे कोटा में था, मेरे ऐसे कोई दोस्त तो नहीं थे कोटा में ऐसे, बट उनकी एडमिशन हो रहे थे, वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उनके टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे थे, मुझे तो उस वक्त यही फील होगा ना कि मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बट मुझे ये भी नहीं पता था कि शायद मेरे लिए लाइफ में आगे अलग एक रास्ता है, वो है। तो हमें शायद इंतज़ार करना चाहिए, और दूसरों के लाइफ से तो हम कंपेयर अगर करना शुरू कर दिए तो फिर तो शायद हम कभी खुश ना रह पाए। दैट वॉज द एम। आज मैंने तुमको इसीलिए बुलाया था क्योंकि बच्चे जो है ना, एक चीज़ अगर उन्होंने सोच लिया है और उसको नहीं अचीव किया है, एंड रोल मॉडल सबके होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी होंगे। रोल मॉडल होना कीप्स यू मोटिवेटेड, कीप्स यू फोकस्ड ऑन अ टारगेट वेयर यू आर मूविंग अहेड इन दैट डायरेक्शन। बट मैं अगर सोचूं कि मैं कल को कोई भी बड़ा नाम, लाइक मेरी पर्सनल फेवरेट स्टेफी ग्राफ है। I know I don't know how to play tennis, but that doesn't take away this thing कि वो मेरी फेवरेट नहीं रहेंगी, वो स्टिल मेरी फेवरेट रहेगी। उस जैसी सक्सेसफुल होना मैं सोच सकती हूँ, पर मेरा रूट टेनिस नहीं हो सकता। मेरा रूट मेरा ही रहेगा, जो मेरा फोटे है, वेयर आई एम स्किलफुल एट, वेयर आई फील दैट आई कैन डू समथिंग। I cannot be the best tennis player of the world. If I want to be successful like her, maybe I have to follow my route. उसमें भी सक्सेस की पिनेकल हर फील्ड में है। रोल मॉडल होना इज जस्ट काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर यू, है ना। सो नाउ इतना अवार्ड और इतना पब्लिक, तुम हर रोज़ कोई ना कोई इवेंट अटेंड करते हो, बड़े लोगों से मिल चुके हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई तुम्हारे शोल्डर पे। हाउ यू आर फीलिंग? देखिए, क्या लाइफ में कुछ चेंज हुआ है?
बहुत कुछ सब कुछ ही मतलब चेंज हो गया ऑलमोस्ट। लोगों से मिलना, इवेंट्स अटेंड करना, ये सब हम इसलिए करते हैं कि हमारा काम आगे बढ़े। हम किसी इवेंट में जाए तो वहाँ पे हमारे कोई कोई नई पार्टनरशिप मिले, कोई नया मेंटोर मिल जाए जो हमारे बच्चों को हेल्प करे, हमें हेल्प करे और वो करे। तो ये तुम्हारे काम का पार्ट ही हो जाता है। इट्स नॉट द ग्लैमर, इट्स वर्क। अटेंडिंग इवेंट्स, स्पीकिंग टू पीपल, इट्स पार्ट ऑफ द वर्क, राइट? But it is often understood as the glamour of this sort of doing things. But when you go things and start attending events, then you understand how much of work and pain it is to go from one event to another, try to convince people, try to sell your product, yourself, whatever you're doing. बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले एक वक्त था कि मुझे अपने स्कूल में एक कंप्यूटर साइंस क्लब स्टार्ट करना था, तो लगभग 3-4 बार अपॉइंटमेंट लेने के लिए गया, तो प्रिंसिपल सर से अपॉइंटमेंट मिला। उन्होंने आइडिया सुना, आइडिया को रिजेक्ट कर दिया या जो भी था, थोड़ा सा जो भी किया, ठीक है। एक वो वक्त था लगभग 9th ग्रेड, और आज ये भी वक्त है कि चीफ मिनिस्टर को अपना आइडिया सुनाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, और वो सुनते भी हैं, वो बातों को समझते भी हैं, उसमें फीडबैक भी देते हैं और बताते भी हैं कि ऐसे कर सकते हैं हम, राइट? तो चीज़ें बदलती हैं, है ना। ऐसा मुझे नहीं है कि मेरे 4 साल में मैंने कुछ मेरी सोच आज भी उस तरह ही है जो आज से 4 साल पहले थी। तो वो जो रिजेक्शन था शायद वो भी मुझे मोटिवेट किया कि सर मुझसे आज नहीं सुन रहे हैं, तो मुझे शायद कुछ इससे बेहतर लाना पड़ेगा, कुछ बेहतर करना पड़ेगा कि चीज़ें सुन सके। और तो मुझे यही लगता है कि चीज़ों को में होने में शायद वक्त लगता है ना। और जैसे जैसे चीज़ें होती हैं आपको उसकी रियलिटी पता चलती है। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि जो मुश्किलें मैंने फेस करी, मुझे नहीं पता था कि वो सब होंगी। शायद वो होता तो उस वक्त मैं डर जाता। तो एक नाइवनेस भी थी, एक बचपना भी था चीज़ों को करने में, और करते गए, होता गया, गिरते गए, उठते गए, और बहुत लकी रहे कि बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और बहुत चीज़ें अच्छे से हो गई। सो इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन आदर्श से डिस्कशन करने के बाद आई रियलाइज, अभी हम बात कर रहे थे रोल मॉडल्स की, अभी हम बात कर रहे थे कि वी लुक एट ओनली द सक्सेसफुल साइड ऑफ द पर्सन, लाइक यू मेंशन चैप्टर 10. Adarsh has just now narrated how difficult it was for him when he was nobody. स्कूल Yeah. में साइंस क्लब बनाने के लिए भी प्रिंसिपल वॉज नॉट रेडी. नाउ ही हैज़ अराइव्ड, ही हैज़ अचीव्ड समथिंग, ही इज़ सक्सेसफुल. नाउ एवरीबडी इज़ रेडी टू मीट यू, दे कॉल यू. Yeah, fortunately. सो बट हमें दिखेगा आदर्श आज का, while the real story is years of hard work, Yeah. years of perseverance, years of focused attention, and also what we realize कि उसे लोग बुलाते हैं, it's a glamorous side of the life. You have given the other side also. Yeah, it is not. वहाँ पे भी तुम जाके तुम्हें हार्ड वर्क करना Yeah, है yeah, टू लुक फॉर द पीपल ऑफ स्किल्स हो, Yeah, उन्हें yeah. कैसे बेनिफिट हो सकता है. सो हम देख रहे हैं कि उसे अवार्ड मिल रहा है, CM से मिल रहे हैं, लेकिन उसका पर साइड जो है वो किसी को नहीं पता. सेम इज़ द केस ऑफ एवरीबडी. वी आर ऑलवेज क्विक टू see the successful and shining side of the person. We must look into the long years of investment, of hard work, of perseverance. और आज आदर्श को यहाँ बुलाने का पर्पस भी यही था. He is in front of us, living role model. कहाँ से शुरू होकर आज जहाँ तक भी आदर्श पहुँचा है. एंड आई एम श्योर आज से जब मैं 2-4 साल बाद तुम्हें फिर से बुलाऊंगी तो तुम कहीं बहुत ज़्यादा बिजी हो गए. आई डोंट नो तुम्हें बुलाने के लिए कितना टाइम लगने वाला है मुझे. सो राइट नाउ तो यू वर जस्ट अ कॉल अवे, राइट? और वी ऑल्सो मेट, इट वॉज ऑल्सो अ चांस मीटिंग. वी मेट थ्रू लिंक्डइन. सो सक्सेस स्टोरी अच्छी है, सक्सेस को फॉलो करना अच्छा है, लेकिन प्रोसेस को देखो पहले. डोंट लुक एट द शाइनिंग साइड, लुक एट द प्रोसेस, हाउ द पर्सन रीचेज देयर. एंड फॉर पेरेंट्स आई वुड से आदर्श अगेन इज़ अ रोल मॉडल. एकेडमिक्स के साथ साथ उसमें और स्किल्स भी थे और पोटेंशियल भी था, और उसको पेरेंटल सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिली. तो सी वेयर ही इज़ टुडे. एंड आई वुड like to send this message to each and every parent. I am also a parent, and incidentally I have been supporting both my kids what they wanted. We as parents never pressurized our kids कि हमें जो लगता है उन्हें करना चाहिए. No, we always wanted उन्हें जो करना है, we are always standing behind them. So I would appreciate हर parent अगर बच्चे का real where their heart lies समझ जाए जिस दिन, तो प्लीज़ स्टैंड बिहाइंड देम
and give them wings to fly. With that, we are going to wrap up today's wonderful discussion, Adarsh, and hope हम फिर किसी दिन मिलेंगे कोई नया और मुद्दा लेके. Until then, हम फिर से अपने अपने पाथ पे फोकस रहते हैं. Yes. And we'll keep moving Yes. and keep creating new milestone. I'm talking about you. New milestone for other to look at and follow. Thank you so much. Adarsh. Thank you so much. Yeah. And I'll always be a call away. ऐसा कभी नहीं होगा कि I'll be so I busy know. that I'm not talking Yeah. to you. Yeah. Thank you so much. Thank you.